The learning objectives are classification leukocytes, 100% of different leukocytes in the blood. Next is leukopulses. What are the steps in leukopulses? And third is regulation of leukopulses. And fourth is features of WBCs and their functions. ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इसका? फर्स्ट हम क्या देखेंगे? ल्यूकोसाइट्स है उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, उनका परसेंटेज देखेंगे। नेक्स्ट हम ग्रेनुलो जो ल्यूकोपल्सेस देखेंगे, ठीक है, उसके बाद में उसका रेगुलेशन, देन डब्ल्यूबीसीज हैं उनको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। Leukocytes or WBCs perform the defense functions of the body. The first cell is pluripotent hemopoietic stem cell. Then it give rise to myeloid series and lymphoid series. Myeloid series matures into the granulocyte and the monocyte. So there are two types of leukocytes, granulocyte and agranulocyte. Granulocyte में कौन कौन सी सेल्स आएंगी? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, एंड agranulocytes are monocyte and the lymphocyte. मोनोसाइट या lymphocyte में भी ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो स्टेनिंग हम यूज में ले रहे हैं उस स्टेनिंग में वो ग्रेनुल्स हमें शो नहीं होंगे। तो जो अगर ग्रेनुल्स प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज ग्रेनुलोसाइट, और जो हमें नहीं शो हो रहे हैं दैट इज एग्रेनुलोसाइट। हम यहाँ पे कौन सी स्टेनिंग यूज में लेते हैं? लीशमान स्टेन। कौन सा स्टेन यूज में लेंगे? लीशमान स्टेन। The lymphoid series mature into the lymphocytes. The granulocytes are neutrophil, eosinophil and basophil. Agranulocytes are monocyte and the lymphocytes. The leukocytes of granulocytic series develop from the myeloblast. Monocyte and the lymphocyte have subgranules. They are not usually visible with commonly used stent. So they are known as agranulocytes. During the process of development, the precursor cells synthesize proteins and store them in the cytoplasmic granules. The enzymes of granules take part in the killing organism. ये जो granules है उसमें जो enzymes present होते हैं वो जो कोई भी infection है उसके अगेंस्ट में क्या करेंगे? फाइट करेंगे। ठीक है, granulocytes exhibit active motility and migrate to the site of inflammation by amoeboid movement to kill organism by the phagocytosis. Inflammation क्या होगा? जब भी कोई infection हो जाएगा तो वहां पर redness हो जाएगा, swelling हो जाएगी, temperature increase हो जाएगा। ठीक है, neutrophils are highly amoeboid and phagocytic and kill a variety of microorganisms, especially bacteria. Therefore, neutrophils are considered as first line of defense against the acute bacteria infections. तो न्यूट्रोफिल ये क्या करेंगी? फेगोसाइटोसिस। क्या करती है? फेगोसाइटोसिस, एंड दे आर नोन एज द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म। Monocytes are also actively phagocytic and they are considered as the second line of defense against infections, especially in chronic and the parasitic infections. Eosinophil and basophil are specialized to participate in allergic inflammatory responses. तो इसलिए एलर्जिक कंडीशन में क्या हो जाएगा? eosinophil count increase हो जाएगा। Lymphocytes are involved in the immunological responses, that is immunity. ठीक है, T and B lymphocytes, cell mediated immunity and the humoral immunity. Cell mediated किसके थ्रू होता है? T lymphocyte and humoral from the B lymphocyte, also known as antibody mediated immunity. Life of leukocytes. Leukocytes have three phases in their life. The first is merophase, circulatory phase and the टिश्यू फेज। तो थ्री फेजेस कौन कौन सी होंगी? बोन मैरो, सर्कुलेटरी एंड टिश्यू। फर्स्ट बोन मैरो में उनका प्रोडक्शन होगा, देन वो सर्कुलेशन में आएंगी एंड देन वो टिश्यूज में एंटर होगी।
When monocyte enters in the tissue, they are known as macrophages. उनको हम क्या बोलेंगे? Macrophages. In the merophase, they develop from progenitor cells where they proliferate and grow into mature leukocytes and get released into the circulation. वही first pluripotent stem cell, coloniformic unit, GM, granulocyte, monocyte. ठीक है, उधर lymphocyte का प्रोडक्शन कौन से होगा? lymphoid सीरीज से होगा. ठीक है, देन माइलोब्लास्ट वगैरह फॉर्मेशन होगा और लास्ट में किसका डेवलपमेंट होगा? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट. ठीक है, देन मेच्योर सेल बन जाएगी. वो फिर कहाँ रिलीज होगी? सर्कुलेशन में. कहाँ रिलीज होगी? सर्कुलेशन. In the circulatory phase, they circulate for few hours before entering into the tissues, where they live a longer period of their life. In the tissue phase, they enter the tissues. In the tissue, monocytes become macrophages that take part in the non-specific defense of the body as a component of mononuclear phagocytic system. तो 3 phases कौन सी हुई? Merophase, second circulatory, third is tissue. Usually, lifespan is 6 to 10 days in the merophase, 6 to 8 hours in the circulatory phase, and 4 to 5 days or more in the tissue phase. तो बोन मेरो में अराउंड कितना टाइम लगता है? 6 to 8, 10 days. 6 to 10 days. आवर्स में किस में रहेंगी ये? सर्कुलेटरी में. 6 to 8 and 4 to 5 days किस में रहेंगे? टिश्यूज या और मोर. नाउ leukocytes. The first cell is pluripotent stem cell. Then it gives rise to myeloid series. Second is for lymphoid series. Lymphoid series में फर्स्ट क्या फॉर्मेशन होगा? प्रो लिम्फोसाइट और भी सेल्स होंगी जो हम आगे पढ़ेंगे. और लास्ट में क्या बनेंगे? लिम्फोसाइट. ठीक है, बोन मैरो में बी सेल्स, थाइमस में टी सेल्स एंड एक और सेल्स का फॉर्मेशन होगा. दे आर नोन एज नेचुरल किलर सेल्स. इधर क्या बनेगा? कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट, जीएम, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट एंड देन उससे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड द मोनोसाइट. अब आपको इसमें ग्रेनुल्स दिख रहे हैं किसमें? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल में. तीनों में ग्रेनुल्स दिख रहे हैं. क्या डिफरेंस दिख रहा है ग्रेनुल्स की साइज में? ग्रेनुल्स की साइज में न्यूट्रोफिल में कैसे हैं? फाइन. कलर कैसा होगा? वॉयलेट पिंक कलर. ठीक है, दोनों स्टैंड होंगे. इसमें क्या होगा? ब्लू. और कैसे होंगे? लार्ज एंड कोर्स. ठीक है, इसमें भी कैसे हैं? लार्ज एंड कोर्स, लेकिन कलर कैसा है? रेड ब्रिक इन कलर. कैसा है? रेड ब्रिक इन कलर. ठीक है, ब्रिक रेड कलर. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ग्रेनुल्स न्यूक्लियस में है यहाँ पे. कवर द न्यूक्लियस. ग्रेनुल्स नो. इसमें क्या होंगे? दे कवर द न्यूक्लियस एंड दे डू नॉट कवर द न्यूक्लियस. ठीक है, ये हम आगे देखेंगे. अभी जस्ट मैं एक आइडिया दे रही हूँ तुम्हें. डायमीटर सेम है. ठीक है, देन मोनोसाइट है. साइज सबसे बड़ा दिख रहा है, लार्जेस्ट सेल. न्यूक्लियस कैसा होगा? किडनी शेप, पेरिफेरल इन पोजीशन, साइटोप्लाज्म इन मोर अमाउंट एंड ग्रेनुल्स आर एब्सेंट. ठीक है, दिस इज लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट में क्या होगा? सेंट्रीप्लेज न्यूक्लियस. ठीक है, ये पूरा बताया गया. 6 to 10 days in the bone marrow, then in peripheral blood, 6 to 8 hours in the circulation, 4 to 5 days in the tissue. Types of leukocyte and their distribution in peripheral blood as DLC and absolute count. What is DLC? Differential leukocyte count. इसमें हम क्या करेंगे? जैसे फर्स्ट हमारा प्रैक्टिकल अभी नेक्स्ट ब्लड फिल्म लगा हुआ होगा. आपने देखा है? अपना टाइम टेबल देखा आपने मार्च का? उसमें एक टॉपिक लगा हुआ है ब्लड सेल. ठीक है, तो उसमें फर्स्ट आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सेल्स करेंगे. ठीक है, जब आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, फर्स्ट आप क्या करोगे? स्लाइड प्रिपेयर करोगे, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाओगे. ठीक है,
देन उसमें सेल्स आइडेंटिफाई करोगे। कौन सा लेंस यूज में लेंगे हम? 100x और ऑल इमर्जन लेंस। 100 में उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। जब आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, उसके नेक्स्ट हम करवाएंगे आपको डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। उसमें हम क्या करते हैं, 100 स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाते हैं, उसको 100 में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 100 स्मॉल स्क्वायर्स बन जाएंगे और उसमें हम 100 सेल्स काउंट करते हैं, ओनली WBCs। हम क्या करते हैं, 100 WBCs काउंट करते हैं। ठीक है, अब उन 100 में से मोनोसाइट न्यूट्रोफिल रेशियो इज 50 to 70%। ठीक है, eosinophil is 1 to 4%, basophil less than 1%, monocyte 2 to 8%, lymphocyte is 20 to 40%। तो जो न्यूट्रोफिल है उसका रेशियो कितना है, 50 to 70%। 100 सेल में से न्यूट्रोफिल कितनी है, 50 to 70। eosinophil बोलो कितना है, basophil 0 to 1, मोनोसाइट कितना है बोलो, एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, न्यूट्रोफिल रेशियो इज, बोलो कितना है, eosinophil बोलो सारे बच्चे, eosinophil कितना होता है, basophil, monocyte and the lymphocyte is 20 to 40%। Now absolute count, the neutrophil is 2000 to 2750, eosinophil is 40 to 440, basophil is 20 to 80, monocyte is 1500 to 4000, lymphocyte is 500 to 800। This is the absolute count। कल मैं पूछूंगी पूरा, जहां तक मैंने आज फिनिश होगा जहां तक। ठीक है, $4000 to 11,000 होता है ना, तो उसको मान के इसमें बताया कितना उसका काउंट होगा, न्यूट्रोफिल, eosinophil, basophil, monocyte and the lymphocyte। Leukopoiesis, it is the development of leukocyte। The origin, development and maturation of leukocytes known as leukopoiesis। Stages of leukopoiesis, the first cell is pluripotent hemopoietic stem cell। It give rise to बीच में मत बोलो कोई भी बच्चा। It give rise to committed stem cell, one for myeloid series and one for lymphoid series। अब इसमें दोनों committed stem cell का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, फॉर इरिथ्रोसाइट हम सिर्फ माइलोइड सीरीज पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें लिम्फोसाइट भी इन्वॉल्व है, तो इसमें क्या आ जाएगा, लिम्फोइड सीरीज भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लिम्फोइड सीरीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ committed stem cell, myeloid and the lymphoid। The stem cell for lymphoid series form the lymphocyte and myeloid stem cell form the granulocyte and monocyte and the platelet। इरिथ्रोसाइट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट सेल प्लूरिपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल, ओके, इधर लिम्फोइड स्टेम सेल बन गया और इधर क्या बन गया, माइलोइड सीरीज। ठीक है, देन एरिथ्रोसाइट्स को भूल जाओ। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम किसकी बात करेंगे, ओनली WBC। तो फर्स्ट इज माइलोब्लास्ट कॉलोनी, इट फॉर्म कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM, G for granulocyte, M for monocyte। Then it form myeloblast and monoblast। क्या फॉर्म करेंगे, माइलोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट। जैसे उसमें क्या हो रहा था, प्रो नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, तो यहाँ प्रो की जगह क्या होगा, माइलोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट, मोनो, तो ये किसके लिए होगा, मोनोसाइट के लिए। किसके लिए होगा, मोनोसाइट के लिए। तो मोनोब्लास्ट, देन प्रो मोनोसाइट, देन मोनोसाइट। इधर क्या बनेंगे, न्यूट्रोफिल, eosinophil एंड basophil। तो इसमें जो माइलोब्लास्ट है, इट फॉर्म प्रो माइलोसाइट। ठीक है, प्रो माइलोसाइट से देन माइलोसाइट बनेंगे। न्यूट्रोफिल के लिए क्या होंगे, न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट। बेसोफिल के लिए क्या होंगे, बेसोफिलिक माइलोसाइट एंड eosinophil के लिए क्या होंगे, eosinophilic माइलोसाइट। देन दे फॉर्म मैच्योर सेल्स, न्यूट्रोफिल, eosinophil एंड द basophil। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बन रहा है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ई की जगह यहाँ पे क्या होगा, GM। क्या होगा, GM। G फॉर ग्रेनुलोसाइट, M फॉर मोनोसाइट,
देन क्या बनेगा इसमें, माइलोब्लास्ट एंड द मोनोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट है उससे क्या होंगे, प्रोमाइलोसाइट। क्या होंगे, प्रोमाइलोसाइट। प्रोमाइलोसाइट से माइलोसाइट, माइलोसाइट से सेल फॉर्म, मैच्योर सेल फॉर्मेशन। फॉर लिम्फोइड स्टेम सेल, लिम्फोइड से क्या बनेंगे, लिम्फोसाइट्स बनेंगे। प्लेटलेट्स का हम प्लेटलेट्स में देखेंगे, ये वाला किसके लिए है, प्लेटलेट्स के लिए। इसमें कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट GEMM दे रखा है, तो GE किसके लिए हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट के लिए। किसके लिए, एरिथ्रोसाइट के लिए। लेकिन अभी हम सिर्फ अगर ल्यूकोसाइट पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट GM। ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट GM, तो इससे क्या बनेगा, G एंड M। M से मोनोब्लास्ट, प्रोमोनोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है, इधर क्या बनेगा, कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट। ठीक है, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। तो फर्स्ट क्या बनेगा, माइलोब्लास्ट। क्या बन रहा था, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट एंड द इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड द न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो कौन कौन से हुए, माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट, इधर इधर प्रोमाइलोसाइट, इधर क्या होगा, प्रोमोनोसाइट, देन माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड द न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल से पहले उसका बैंड फॉर्म हो, जो न्यूट्रोफिल है शेप होगी वो फॉर्म लाइक होगी। इधर प्रोमोनोसाइट है, उससे किसका फॉर्मेशन होगा, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल। लिम्फोइड स्टेम सेल है, इट गिव राइज टू लिम्फोसाइट, T cells एंड द B cells। These are the changes for hemopoietic stem cell। ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट GM, देन उससे डेवलपमेंट होगा। ओके, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट। ओके, न्यूट्रोफिल में क्या होगा, बैंड फॉर्म न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल के लिए दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल से न्यूट्रोफिल का इसमें समझाया गया है। दिस इज न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल से पहले बैंड फॉर्म, कई बार सर्कुलेशन में बैंड फॉर्म सेल्स भी तुम्हें दिखेंगी नेट्रोफिल। जो पेरिफेरल बेड्स में देखोगे आप, तो इस तरीके की तुम्हें सेल्स दिखेंगी, वो कौन सी होंगी, न्यूट्रोफिल, बैंड फॉर्म न्यूट्रोफिल। ठीक है, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म। ये बैंड फॉर्म इओसिनोफिल और बेसोफिल में एब्सेंट होगा, तो उसमें डायरेक्ट क्या आ जाएगा, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा है, बोलो बोलो, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट एंड न्यूट्रोफिल। ठीक है, और इओसिनोफिल, बेसोफिल में हम फॉर्म इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, गॉट इट। Colony forming unit GM is the phagocytic series progenitor cells that on further differentiate from CFU-G and CFU-M. ठीक है, and CFU colony forming units from the blast cells। यही एरिथ्रोसाइट में भी हो रहा था। colony forming unit C क्या फॉर्म कर रही थी, blast cells, pro-normoblast, early normoblast, intermediate, late। ठीक है, colony forming unit G forms myeloblast, which on further development form neutrophils। CFU-M form monoblast that develops into the monocyte। Colony forming unit eosinophil form eosinophilic myeloblast that develop into the eosinophil। ऐसे basophil form basophil myeloblast that develop into the basophil। The myeloblast form promyelocytes। Promyelocytes form myelocytes, metamyelocytes that in turn develop into the mature leukocytes। Colony forming units are progenitor cells that develop from the committed cells। Blast cells, these are precursor leukocytes। These are the earliest precursor cells of leukocyte development that are morphologically differentiated।
The blast cells for neutrophils are myeloblast, for eosinophil are eosinophil myeloblast, basophil for basophil myeloblast. For monocyte it is monoblast and for lymphocyte it is lymphoblast. Lymphocytes के लिए क्या formation होंगे? Lymphoblast. And they are the large cells, their diameter is 60 to 20 micrometer with large nucleus containing multiple nucleoli. The nucleoli are the prominent features of blast cells and are the sites of assembly of ribosomal proteins and the rRNA. Cytoplasm is scanty and cells are actively mitotic. सेम वही होगा जो किसमें था? आरबीसी फॉर्मेशन में था. The earliest precursor cells for neutrophils are the myeloblasts. They have scanty blue cytoplasm with 5 to 10 nuclei in a large nucleus. And the separate myeloblast for eosinophil is eosinophil myeloblast. For basophil it is basophil myeloblast. Monoblast, these are the blast cell for the monocytes के लिए. Monocytes के लिए क्या होंगी? Monoblast. Lymphocytes के लिए क्या होंगी? Lymphoblast. And they resemble myeloblast morphologically. They are also known as myelomonoblast. Lymphoblast, these are the blast cells for the lymphocytes. They have fewer nucleoli. Nuclear components are clumped. Promyelocytes and promonocytes. The promyelocytes and promonocytes develop from myeloblasts and monoblasts respectively. And they have following features. The cells are also large and cytoplasm is the granular. Nucleus is round and condensed and contain less nucleoli and cells are mitotic. Promonocytes are larger cells, then on further development for monocytes and the largest cell in the peripheral blood. तो जो diameter है monocyte it is 14 to 18 micrometer. ठीक है, largest cell होगी. जो peripheral blood smear है उसमें आप monocyte को कैसे identify करोगे? cells को किसके साथ compare करोगे? WBCs, platelets इनको compare to RBC size. RBC diameter कितना होता है? 12.5 micrometer. Okay, then जो न्यूट्रोफिल है उसका डायमीटर कितना होगा? 10 to 14. इओसिनोफिल 10 to 14. बेसोफिल 10 to 14. लिम्फोसाइट टू टाइप्स की, स्मॉल एंड लार्ज. आपको उसमें कौन सी देखनी है? लार्ज लिम्फोसाइट एंड स्मॉल लिम्फोसाइट. स्मॉल लिम्फोसाइट डायमीटर इज 7 to 10 माइक्रोमीटर. कितना होगा? 7 to 10 माइक्रोमीटर. एंड लार्ज लिम्फोसाइट का डायमीटर कितना होगा? 10 to 14. कितना होगा? 10 to 14 माइक्रोमीटर. ठीक है, तो and the monocyte it is the largest cell, its diameter is 14 to 18. इसका डायमीटर कितना होगा? 14 to 18. तो आपको आरबीसी के साथ उसका कंपेयर करना है और फिर उसका साइज देखना है. अगर वो सेल सबसे बड़ी है देन इट इज नोन एज मोनोसाइट. और देन हम उसमें इसका क्या देखेंगे? न्यूक्लियस देखेंगे. न्यूक्लियस कैसा है? जेनुस प्रेजेंट है नहीं है. ठीक है, अदर फीचर्स हम देखेंगे. The promyelocytes are also larger cells and contain large population of peroxidase positive granules. The granules are large in size, having diameter of about 500 nanometer. कौन से होंगे? Peroxidase positive enzymes. Now myelocyte for neutrophil. Neutrophil के लिए क्या होगी? Neutrophilic myelocytes. They have diameter about 12 to 20 micrometer. They have following features. They contain round concentric nucleus. Nuclei are absent. Cells show some degree of mitosis. About 3 cells division occur in the stage of the maturation. The characteristic feature of this stage is appearance of peroxidase negative specific granules. The granules are usually spherical or rod shaped. The peroxidase positive granules are less than peroxidase negative granules. This is because with each mitotic division, peroxidase positive granules are reduced, where negative granules continue to be formed. Next is metamyelocytes. The diameter of metamyelocyte is 12 to 18 micrometers. There is no mitosis. Neutrophils develop from the metamyelocytes. ठीक है, first band form होगा, then it further grow into the segmented neutrophil. That is known as mature neutrophil. तो जो mature neutrophil होगा उसमें जो न्यूक्लियस है उसके लोब होंगे 1 to 6. इतना
1 to 6 और मोर, ठीक है। बेसोफिल है बाई बेसोफिल जो है उसमें क्या होगा, बाइलॉब होगा। कैसा होगा, बाइलॉब। इयोसिनोफिल है वो भी बाइलॉब होगा इन 85% सेल्स में, एंड 15% में क्या हो सकता है, वो ट्राइलॉब। क्या हो सकता है, ट्राइलॉब। तो एक दो बार हमें भी ट्राइलॉब इयोसिनोफिल दिखी थी। तो अगर किसी में न्यूक्लियस फ्री हो, लार्ज एंड कोर्स ग्रेन्यूल्स हो, डायमीटर 10 to 14 हो, ठीक है, और granules do not cover the nucleus, then it is known as eosinophil। तो ट्राइलॉब eosinophil भी हो सकता है, ठीक है। बाइलॉब होता है मेनली, लेकिन कुछ केसेस में क्या हो सकता है, ट्राइलॉब। क्या हो सकता है, ट्राइलॉब। और 1 2 जैसे बैंड फॉर्म होगी, तो बैंड फॉर्म में क्या होगा, न्यूट्रोफिल है वो रिलीज हो गया मान लो सर्कुलेशन में बैंड फॉर्म में, तो उसमें सिर्फ एक ही लॉब होगा, ठीक है, और उसका डायमीटर लार्ज होगा। बैंड फॉर्म का डायमीटर 10 to 14 ही होगा, उससे लार्ज होगा। तो आप उसको मोनोसाइट मत मानना, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, वो बैंड फॉर्म जो मैंने भी बताया था, बैंड फॉर्म बताया था ना न्यूट्रोफिल का, तो उसमें उसका साइज बड़ा होता है, तो बच्चे उसको मोनोसाइट आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, मोनोसाइट। लेकिन आप उसकी ग्रेन्यूल्स देखना, आपको उसमें ग्रेन्यूल्स दिखेंगे, ठीक है, और उसका साइटोप्लाज्म कलर देखना, न्यूक्लियस की शेप देखना कि वो कितनी शेप, हॉट शू शेप है या फिर बैंड फॉर्म है। Leukopoiesis is mainly regulated by cytokines, especially colony stimulating factors, interleukins, and tumor necrosis factor. T lymphocyte, monocyte, fibroblasts, endothelial cells, liver, and kidney are the major sources of hemopoietic growth factor. इनसे growth factors है ये release होंगे, colony stimulating factors, interleukins। The growth factors are interleukin first, second, third, and sixth, ठीक है। Other is GM-CSF, GCSF, MCSF, erythropoietin and thrombopoietin। erythropoietin ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं फॉर एरिथ्रोसाइट, thrombopoietin किसके लिए होगा, फॉर द प्लेटलेट्स, ठीक है। एंड ये सारे और किसके लिए होंगे, मेन द WBC। MCSF मेनली किसको करेगा, मोनोसाइट एंड द मैक्रोफेजेस। इसके लिए ग्रोथ फैक्टर है फोर्थ है मोनोसाइट एंड द मैक्रोफेजेस। कहां से सीक्रेट होगा, फ्रॉम मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट एंड द एंडोथेलियल सेल। GCF ग्रेनुलोसाइट, मींस ये सारी सेल्स को, सारी ग्रेनुलोसाइट को स्टिमुलेट करेगा उसकी ग्रोथ को, ठीक है। मेनली करता है ये न्यूट्रोफिल की, वैसे मेनली किसको करेगा, न्यूट्रोफिल को, ठीक है। सोर्सेस क्या है, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड द फाइब्रोब्लास्ट। GM-CSF ये भी साथ सबको करेगा, ठीक है ना, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, आरबीसीज एंड द प्लेटलेट्स। इसके अलावा इंटरल्यूकिन्स है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। द फर्स्ट द सोर्स इज एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, इंटरल्यूकिन सेकंड इट इज सेक्रेटेड बाय द T lymphocyte, थर्ड आल्सो बाय द T lymphocyte, सिक्स्थ T lymphocyte, मोनोसाइट एंड द मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये टी सेल्स को करेगा, ये हिमोपोइटिक स्टेम सेल्स को के लिए ग्रोथ फैक्टर है उसको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। इंटरल्यूकिन 6 फॉर द बी एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये चार्ट है, बुक में भी दिया हुआ है, ये चार्ट याद रखना, ठीक है। इंटरल्यूकिन फर्स्ट 6 साइड प्रमोट मैच्योरेशन ऑफ द स्टेम सेल्स, दे आर प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल। इंटरल्यूकिन 5 हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इयोसिनोफिल एंड देयरफॉर interleukin 5 is known as eosinophilic growth factor. Interleukin 3rd and 4th facilitate the development of the basophils and interleukin 2nd inhibit myelopulse. T lymphocyte से कौन कौन से सीक्रेट होंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड GM-CSF। फ्रॉम मोनोसाइट रिलीज इंटरल्यूकिन 1, 6, GCSF, MCSF। फिब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल्स, इनसे क्या सीक्रेट होंगे, 6, GM-CSF, GCSF एंड MCF। एंड लिवर एंड किडनी एरिथ्रोपोइटिन एंड द थ्रोम्बोपोइटिन। GM-CSF secreted by the fibroblast, vascular endothelial cells, monocyte and the T lymphocyte. It stimulates differentiation and proliferation of pluripotent stem cell into the
committed cell, stem cell. GM-CSF also help in the differentiation of colony forming unit into the blast cell and further development into the mature cell. GCF, this is the granulocyte colony stimulating factor produced by the monocyte, endothelial cells and the fibroblasts, and it helps in the development and functions of the granulocyte. MCF, ये किसके लिए करेगा? For the monocytes and macrophages, and it is produced by the fibroblasts, endothelial cells and the macrophages. It promotes proliferation of monocyte and the macrophages. Tissue necrosis factors helps in the proliferation and differentiation of the stem cells. ये आपका ग्रेनुलोफॉर्सिस कंप्लीट हो गया, ठीक है।